नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने सरदार सरवाई बापन्ना गौड की 376वीं यौम पैदाइश के मौके पर सरदार सरवाई बापन्ना फिल्म के ट्रेलर की नकाब कुशाई। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई से मुताल्लिक़ टेसरैक्ट ज़मीन के मामले को बड़ा स्कैम करार देते हुए तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग की चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू से मुलाकात। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादुल ख्याल। KBR पार्क के अतराफ फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर के पेश नज़र 18 अगस्त 2026 से वन वे ट्रैफिक निज़ाम नाफिज करने का किया गया फैसला। वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने CCI के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कपास की MSP पर ख़रीदारी के सिलसिले में रियासत में जारी तैयारियों का लिया जायज़ा। बालापुर दरगाह हज़रत सैयद इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद अकबर मोहिउद्दीन क़ादरी ने चादर गुल की पेश। अब पेश है ख़बरों की तफसील। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पुन्नम प्रभाकर ने सरदार सरवाई बापन्ना गौड की 376वीं यौम पैदाइश के मौके पर सरदार सरवाई बापन्ना फ़िल्म के ट्रेलर की नकाब कुशाई की। फ़िल्म 21 अगस्त को रिलीज़ होगी। वज़ीर ने बापन्ना गौड की ज़िंदगी पर मबनी किताब और फ़िल्म का पोस्टर भी जारी किया। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि बापन्ना गौड ने समाजी मसावत, खुद हुक्मरानी और पसमानदा तबक़ात के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की और गोलकुंडा को मरकज़ बनाकर बहुजन राज कायम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बापन्ना गौड की तारीख़ और जद्दोजहद को मौजूदा और आने वाली नस्लों तक पहुँचाने में फ़िल्म और किताबें अहम किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर ने फ़िल्मी टीम को भी मुबारकबाद पेश की। చరిత్ర బహుజన చరిత్ర ఆనాడు సామాజిక పరిస్థితుల్లో మరి ఆనాడు యుద్ధం చేస్తూ బహుజన రాజ్యాన్ని నెలకొల్పాలి, మన ప్రాంతం మనమే పరిపాలించాలనే ఆలోచనతో పోరాటం సాధించి కోటలను జయిస్తూ గోల్కొండ కోట దాకా వెళ్ళినటువంటి సర్దార్ సర్వాయి బాపన్న ఈనాటి తరానికి స్ఫూర్తి. తప్పకుండా వారి పోరాట చరిత్రను రామకృష్ణ గారు ఒక సినిమా రూపంలో కూడా చేయడం, అదేవిధంగా వెంకటేష్ గారు ఒక పుస్తకంలో కూడా రాయడం, ఇవన్నీ కూడా చరిత్రను భవిష్యత్ తరానికి అందజేసే ప్రక్రియలో భాగం. తప్పకుండా సర్వాయి బాపన్న చరిత్ర భవిష్యత్ తరానికి ఉపయోగపడి సామాజిక న్యాయానికి, అదేవిధంగా బహుజనుల యొక్క ఐక్యతకు, ముందు సామ్రాజ్య వ్యవస్థలో మరి ఎదగడానికి వీరి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి జీవితం ఉపయోగపడుతుందని ఆకాంక్షిస్తూ ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటాం. సర్వాయి బాపన్న మూవీ రిలీజ్ 21st అనుకున్నాము. అన్న చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయాలని వచ్చినందుకు, అన్న టైం ఇచ్చినందుకు అన్నగారికి ముందుగా పొన్నం ప్రభాకర్ మినిస్టర్ అన్నగారికి నాకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అన్న ఈ సినిమా చరిత్ర అందరికీ తెలుసు. బహుజనుల కోసం ఆయన పాటుపడిన పోరాట పటిమ అంతా బాగా అన్నగారి కాన్స్టిట్యున్సీలోనే, హుస్నాబాద్లోనే అనేది ఎండ్ అయినది చెప్తున్న చరిత్ర. కాబట్టి అన్నగారి చేతుల మీదుగా చేయాలని దీన్ని బ్రహ్మాండంగా రిలీజ్ కూడా 21st చేయబోతున్నాం. దానికి మా వెంకటేష్ గారు చాలా అద్భుతంగా దీన్ని చేసి ఈరోజు అన్న మాకు టైం ఇచ్చి ఇది రిలీజ్ చేసినందుకు నిజంగా చాలా సంతోషిస్తున్నాం. బహుజనులంతా ఏకం కావాలని ఆనాడు 376 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన పోరాటం సలిపి ఈరోజు ఆయన 18th ఆయన బర్త్డే, దాని సందర్భంగానే మేము 21st రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ప్రేక్షకులందరూ ఈ సినిమాని బాగా ఆదరించి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సినిమా చరిత్ర ఎలా ఉండాలనేది దీనిలో పూర్తిగా చూపించడం జరిగింది. ఈ బుక్కులు కూడా వెంకటేష్ గారు బాగా చేసి ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. ఇక అన్నగారికి బాగా తెలుసు, మంత్రి గారికి దీని గురించి బాగా తెలుసు కాబట్టి మాకు టైం ఇచ్చినారు. వారికి నిజంగా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నిజంగా పాపన్న ఎక్కడో అన్నగారికి మనస్సులో వచ్చి మా పాపన్న ట్రైలర్ లాంచ్ చేసినందుకు నిజంగా మీరు మహా 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 గొప్ప వ్యక్తులుగా మేము అభివర్ణిస్తూ, గౌడ్ల కోసం ఒక్కరికే కాదు మొత్తం బడుగు వర్గాల కోసం చేసిన పెద్ద వీరుడు సర్దార్ పాపన్న. ఆయన సినిమా రావడం కూడా అందరికీ చాలా మంచిది. ఈ రోజు ఈ అన్నగారు మొన్ననే ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర కూడా ల్యాండ్ చూసినారు. ట్యాంక్ బండ్ విగ్రహం పెట్టాలని అన్నగారు చూసి అక్కడ ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా వేసినట్టున్నారు కదా. 18కి ఆవిష్కరణ చేస్తున్నారు. అన్నగారు మీరు చేస్తున్న ఈ పోరాటానికి మా అందరి సపోర్టు సహకారం మీకు
బాగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई से मुताल्लिक़ टेसरैक्ट ज़मीन मामले को स्कैम करार देते हुए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। केटीआर ने सवाल उठाया कि सिर्फ 1 लाख रुपये पेड अप कैपिटल और मुबैना तौर पर ज़ीरो मुलाजिमी रखने वाली कंपनी को 200 करोड़ रुपये मालियत की 5 एकड़ सरकारी ज़मीन सिर्फ 7 करोड़ रुपये में कैसे दी गई। उन्होंने टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम की माली हैसियत और कंपनी से मुताल्लिक़ तफसीलात भी सामने लाने का मुतालबा किया। केटीआर ने सवाल किया कि अगर कुंडल रेड्डी का टेसरैक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इन्हें कंपनी के चेयरमैन के तौर पर क्यों पेश किया गया और उन्होंने कंपनी की जानिब से इजलासों में नुमाइंदगी क्यों की। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, इनके भाई, मुताल्लिक़ा वज़रा और ओहदेदारों के किरदार की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कहा कि बीआरएस गवर्नर और लोक आयोग से रुजू करेगी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, इनके भाई, मुताल्लिक़ा वज़रा और ओहदेदारों के किरदार की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कहा कि बीआरएस गवर्नर से रुजू करेगी और तमाम कानूनी व आइनी रास्ते अख्तियार करेगी। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की सरकारी ज़मीन को किसी ज़ाती मिल्कियत नहीं समझा जा सकता। Well, the matter is very simple. There was a time in Karnataka when the Chief Minister of Karnataka, when the then Chief Minister of Karnataka, Mr. Siddaramaiah, was almost compelled to resign because of what was called the Muda scam, Mysore Urban Development Authority scam, where the Chief Minister's wife was allotted 3 acres of land, prime land. Today, a much bigger scam is unfolding in Telangana. This is the LinkedIn profile of Kondal Reddy Anumula, where he calls himself the chairman of a company called Tesseract Advanced Systems Limited. ये Tesseract क्या है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझने की कोशिश किए हैं। Tesseract Advanced Systems क्या चीज़ है, हमने जब कोशिश की, हमने सोचा कि इनका जो भी मतलब डाटा होगा उनके खुद के वेबसाइट पे तो होगा, तो खुद का अगर वेबसाइट अगर देखा Tesseract का, तो उसमें फ़ोन नंबर लिखा गया 1234567889। अभी ये कैसी कंपनी है शायद इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साथ ही साथ हमने थोड़ा प्रोफाइल भी इनकी पढ़ने की कोशिश की, तो इसमें लिखा गया कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हमने ढूंढा। एम्प्लॉयज़ उनके खुद का रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, एम्प्लॉय एक भी नहीं है, नो एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। और साथ ही साथ हमने कोशिश की कि कौन है ये कुंडल रेड्डी, सेम आदमी है कि कोई और है। तो ये कुंडल रेड्डी साहब USIPF के मीटिंग में बैठे हुए हैं, USIPF में शामिल हो गए, स्ट्रेटेजिक इंडिया पार्टनरशिप फोरम में। किस नाते, किस होदा में? टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स चेयरमैन होने के नाते उनको इसमें दर्जा मिला और इसमें बाग होने का मौका मिला। फिर बाद में हमने ढूंढा कि है कहाँ ये टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। इसका एक शेल कंपनी का एक एड्रेस दिया हुआ है, कोई पटानचेरू में एक घर है, एक फ्लैट है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। और इस कंपनी को 5 एकड़ कीमती जमीन, 200 करोड़ वाला जमीन, 200 करोड़ मार्केट वैल्यू वाला जमीन इस कंपनी को 7 करोड़ में दे दिया गया। अब जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल है 1 लाख, जिस कंपनी का एक एम्प्लॉय नहीं, क्या इनका इतना मतलब इंपॉर्टेंस था कि गवर्नमेंट ने उनको 5 एकड़ जमीन जो किसानों से हड़प के, किसानों को डरा के धमका के जो जमीन लिया रावीराल में, वहां उस जमीन जो आज चीफ मिनिस्टर बार बार कहते हैं ना फ्यूचर सिटी, उस फ्यूचर सिटी के बगल में दिया गया है जमीन। 200 करोड़ का जमीन 7 करोड़ में चीफ मिनिस्टर के भाई होने के नाते उनको दिया गया। तो इससे बड़ा स्कैम, मूडा स्कैम से भी बड़ा स्कैम यहाँ पे है। इस बात को हम लोग इसी लेवल पे नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सर को मिलेंगे, उनको भी शिकायत करेंगे, लोकायुक्ता का भी दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही साथ जो भी कानूनी तौर पे कार्रवाई करना होगा। ये देखिए, ये है उस कंपनी का एड्रेस, ये है कंपनी जो टेसरैक्ट है उसका दिया हुआ एड्रेस। दिस इज देयर एड्रेस, द शेल कंपनी का एड्रेस। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर विद अस। आई विल लीव इट विद द मीडिया। आई अपील टू द मीडिया एज वेल, प्लीज इन्वेस्टिगेट, प्लीज इसका छानबीन करो। इसका अगर हमने कुछ गलत कहा है तो हमको भी बताओ। इस कंपनी के बारे में कल हमारे पार्टी के लीडर कृषांक जी ने कल प्रेस मीट किया, तो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, उन्होंने आगे आके बयान दिया कि भाई इस कंपनी से कुंडल रेड्डी जी का, रेवंत रेड्डी का भाई का कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर लेना देना नहीं है तो USIPF में कैसे उनको मेंबरशिप मिला? टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स चेयरमैन होने के नाते मिला। USIPF में जहां वो बैठे हैं वहां खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है कुंडल रेड्डी बिलोंग्स टू टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। जरा वो फोटो दिखा दो।
कौंसिल जनरल के साथ जो बैठे हैं वो दिखाओ। हाँ, ये वाला, ये देखिए आप, अमेरिकन कौंसिल जनरल लॉरा विलियम्स जी के साथ ये आदमी बैठा हुआ है। उसके नीचे क्या लिखा है यहां पे? कोंडल रेड्डी टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। टेसरैक्ट, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था टेसरैक्ट ने। अगर कोंडल रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है टेसरैक्ट के साथ, किस ओहदे में बैठा वहां पे? क्या है ये आदमी? चीफ मिनिस्टर का भाई है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये मूडा स्कैम से भी बड़ा स्कैम है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसका अल्टीमेट कंक्लूजन लॉजिकल यही होगा कि इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर पे और जिन ऑफिसरों ने इनको एक शेल कंपनी को लैंड दिया, सब पे एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। सदर मजलिस फ़ारूक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुखरना अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में MLC मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी और साबिक़ा कॉरपोरेटर अजीज़ खान पठान ने आज तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू IS से सेक्रेटरीट में मुलाकात की। मुलाकात में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में बेहतर इंतज़ामात, सफाई, रोशनी, सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज और दीगर कामों को बर वक्त मुकम्मल करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को एक नुमाइंदगी भी पेश की गई, जिसमें मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात और मुताल्लिक़ा तमाम तरक्याती व मरम्मती कामों को बेहतर अंदाज में अंजाम देने और मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की दरख्वास्त की गई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने HCT प्रोजेक्ट के तहत KBR पार्क के अतराफ फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर के पेश नज़र 18 अगस्त 2026 से वन वे ट्रैफिक निज़ाम नाफिज करने का फ़ैसला किया है। सड़क की महदूद गुंजाइश और ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के बायस ये फ़ैसला किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इस निज़ाम के निफाज से कबल 5 अप्रैल और 21 जून को 2 पायलट ट्रॉल भी किए थे, जिनके दौरान ट्रैफिक फ़्लो और मुख्तलिफ जंक्शंस की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस सिलसिले में हैदराबाद कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अहम मुकामात पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। नई लैंड मार्किंग और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाएंगे, जबकि CCTV और ड्रोन के ज़रिए मुसलसल निगरानी की जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस की हिदायत और नए वन वे निज़ाम की पाबंदी करें, गलत सिमत पर गाड़ी ना चलाएँ, गैर क़ानूनी पार्किंग से गुरेज करें और सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी ट्रैफिक अपडेट्स पर ही भरोसा करें। मैडम थोड़ा क्लोज हुई। ये बेटा ही है, उसमें क्या है। सबको मालूम है कि लास्ट 4 महीने से हम लोग KBR पार्क वन वे करने के लिए हम हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस, GHMC सब लोग ट्राई कर रहे। तेलंगाना गवर्नमेंट एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव लिया, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है HCT प्रोजेक्ट, विच इज गोइंग टू मेक KBR पार्क को वन वे हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 7 फ्लाईओवर्स, 7 अंडरपासेस जो 5 किलोमीटर का KBR पार्क के होते हुए निकलते, इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा, सेफर मूवमेंट होगा, फास्टर मूवमेंट होगा, ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर का कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा, ऐसे भी फ्यूल का सेविंग्स होगा, पोल्यूशन कम हो जाएंगे और फैमिली टाइम भी इम्प्रूव हो जाएंगे। सो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है ट्रैफिक में और कम्यूटर्स को भी। इससे हम लोग अप्रैल में और जून में 2 बार ट्रायल रन किया, एक बार 3 घंटा, एक बार 6 घंटा। हमको मालूम पड़ा कि थोड़ा कहाँ रुकावट है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, पब्लिक भी हमको सजेशंस दिया। इसके बाद हम लोग GHMC और वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, TSRTC, ICA सब लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग प्लान किया। देन अभी 18 से, इस महीने 18 से हम लोग इसको फुल फ्लेज्ड 6 बजे से ये वन वे कर रहे। इसकी वजह से पब्लिक को थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसलिए हम लोग रेगुलरली हमारा ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी देते रहते हैं। लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग एडवाइजरी दे के आपका ट्रैवल प्लान बनाइए और जो लेन चेंजेस कहाँ करना है उसके हिसाब से करिए, नहीं तो आपको फिर अगेन गोल चक्कर मारना पड़ता है। नहीं, एक थोड़ा भी मिस्टेक है तो भी बिकॉज वहाँ पे
आपको फिर अगेन यू टर्न करने का कुछ सुझाव नहीं है। और ये करने के लिए हम लोग, हमारा ट्रैफिक पुलिस अभी 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, अभी आगे 4 शिफ्ट की साथ हम लोग काम करेंगे। हम लोग हमारा सीसीटीवी नेटवर्क को अप कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी हम लोग रेगुलर 24/7 मॉनिटर करेंगे और ड्रोन का भी इस्तेमाल करके कहाँ प्रेशर पॉइंट्स है करके हम लोग देखेंगे। मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करूंगा, आप जैसे पब्लिक कोऑपरेट किया इस बार भी कोऑपरेट करने के लिए, और हम लोग ऑलरेडी 2 बार में पब्लिक बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया, मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो इस करते वक्त केबीआर जो पार्क को पहले सुबह वॉकिंग आते हैं और शाम में वॉकिंग जो विजिटर्स है उनको अपना प्लान, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स का प्लान को रिवाइज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उनको कोऑपरेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इस काम के बीच में बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ट्रैफिक वायलेशंस करने के लिए सोचते हैं, बट वैसे मत करिए, क्योंकि हम लोग का सीसीटीवी से हम लोग वॉच करते रहेंगे। उसके अलावा आपकी लाइफ सिक्योरिटी के लिए आप लोग रेगुलर ट्रैफिक रूल्स करिए, क्योंकि व्हीकल्स का मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएंगे। इसलिए आप लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग मत करिए। जो पहले से आप लोग जैसे कोऑपरेट किया आगे भी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर लगता है, उस टाइम पे आप कोऑपरेट करने के लिए मैं जीएचएमसी की तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और सब गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग क्या रहेगी कंस्ट्रक्शन? 1.5 ईयर तक, 1.5 ईयर तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का है चांस है। वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने आज सुबह 11 बजे हैदराबाद के मासब टैंक गोलकुंडा होटल में सीसीआई के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कपास की एमएसपी पर ख़रीदारी के लिए रियासत में जारी तैयारियों का जायज़ा लिया। इजलास में ख़रीदारी के मराकज़ के क़याम, ज़रूरी बुनियादी सहूलियात और किसानों को एमएसपी का फ़ायदा यकीनी बनाने समेत मुख्तलिफ़ अमूर पर गौर किया गया। इजलास में सीसीआई के आला हुकाम और इदारों के अलावा महकमे ज़राअत व मुताल्लिक़ा महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। दरगाह बालापुर हज़रत सैयद इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर ख़ुसूसी रूहानी इज्तिमा का इनेक़ाद अमल में आया। दरगाह के सज्जाद नशीन हज़रत सैयद अकबर मोहिउद्दीन क़ादरी ने तमाम आलम इस्लाम, मुल्क व मिल्लत और बिलख़ुसूस उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और अमन व अमान के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की। इस मौके पर तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों से भी बड़ी तादाद में मुरीदीन और अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और दरगाह पर हाज़िरी देते हुए फ़ातिहा ख़्वानी और दुआएँ की। उर्स शरीफ के दौरान हज़रत सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को बेहतरीन ख़राज अक़ीदत पेश किया गया और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गई। इस मौके पर एसएमएम क़ादरी एडवोकेट सैयद उस्मान क़ादरी मशाइख, सैयद हुसैन क़ादरी माशूक़ रब्बानी वरंगल, अज़मतुल्लाह जाफ़री, मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद फाउंडर ज़ेड न्यूज़ व पैट्रियोटिक व्यूज़ डेली, सैयद शाह आसिम पाशा क़ादरी सज्जदा नशीन दरगाह हज़रत मोमिन चुप क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, सैयद बशीर क़ादरी मशाइख, सैयद मुर्शिद क़ादरी मशाइख और सैयद अहमद क़ादरी मशाइख बालापुर के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन, मुरीदीन और अक़ीदतमंद भी मौजूद थे। मनाज़िलना मनाज़िल कुल मीरा मुहिद्दीन अबू मोहम्मद शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसना गौसुल आज़म तस्लीद अब्दुल्लाह ताला जुमला औलिया इनके सिद्दीक़ीन सालिहीन व तमामुल मुमिनात खुसूसन सैयदना इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह व जुमला जुमलान अल्लाह ताला पेशान बिन्ना दाव मलाइकतु यसल्लूना जन्नत जायमा जतीना व सल्लल्लाहु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला तन्नजी या दरबार वाला पाक चौकिया में हजरत वजू तहदीद गुना या वसा कौना बिहाई का ताला या जो लोगों ने मसला लगाया खैरात की हयात बात इन्नका ला कदीर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा नौज़ुबिका मिनल बला'i व जलिका शिक़ाक़ व सूइल ग़िज़ाक़ व शमातिल अक़दार अल्लाहुम्मा इन्नका तुअल्लिक़ु फ़ी नूरिक व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिक अल्लाहुम्मा अक्फिना बिमशरिक़ आमीन ला यसीरून या रब्बी व रब्बी व रब्बी मनाफ़िक़ या कना व या नस्तईन
الله والله ربي ربي شيء لا اله الا الله هذا الحين من العالمين ربي يعني محمد منقذ ربي يعني مسلم يوسف الورائمين ربي ربي حسب الله ونعم الوكيل على الله توكل حسب الله ونعم الوكيل على الله توكل حسب الله ونعم الوكيل على فتح النصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حافظ وحفظ رحيم من ناصر يا لطيف يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحم الرحيم يا فتح السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا فتح السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا رحم الرحيم يا اهل المشكلات يا كافر القلقيات يا كافر التقوى يا رحم الرحيم يا رزاق ارزقنا يا خير الرازقين يا رزاق ارزقنا يا خير الرازقين يا فتاح الذي فتح كل ابواب انا فتحنا لك فتحا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الرحيم يا نبي على النبي اجمعين خالق من شهداء النبي كربلاء की कोई या अल्लाह बला से वबा से परेशानी मुसीबतों से महफूज कर हालत में आसमानी जमीनी ताज बदलिया महफूज कर या काबुल वकायत की फत या मुसलमानों की जान माल काबुल वकायत की हिफाजत कर या आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा या जो परेशान है उनकी परेशानी दूर कर या जो बीमार है तो सदरा के इत्तेसार उनकी मौत दराज कर या सैयद सुल्तान वजीर काजी साहब का मिस्किन अफरत पर उनके दर्जात बुलंद कर उनको आला ये मुकाम पर या आलमीन हमारे तमाम जायज पूरे फरमा या सैयद सुल्तान वजीर काजी साहब की अता फरमा तमाम हाजिरीन के जायज मकासद पूरे फरमा के दादा करम मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते मुश्किलें दूर शहर के वास्ते या इलाही कर बनाए रह शहीद करबला के वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद वाल वसल्लम हैदराबाद के उपल जोन एसओटी पुलिस ने बोर्डुपल में वाक़ अमनान गल्फ बेकरीज पर छापा मारकर मुज़र सेहत अशिया और रंगों और पाउडर से तैयार किए गए केक जब्त कर लिए। पुलिस ने बेकरी ऑपरेटर अब्दुल मुतलिब को हिरासत में ले लिया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ठीक है मैदा सर हेलो ये क्या बोलते हैं? जाम बोलते सर एक्सट्रैक्ट जाम ये एक्सट्रैक्ट जाम सॉस जलपल्ली सर्कल 17 के इलाके वादी मुस्तफ़ा में कचरे के ढेर और ड्रेनेज के गंदे पानी से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मसाइल से परेशान मुकामी अवाम जलपल्ली म्यूनसिपालिटी BRS पार्टी के माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट सैयद हुसैन के दफ्तर पहुँचे और इन्हें इलाके के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। अवाम की शिकायत पर उन्होंने वादी मुस्तफ़ा का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जलपल्ली सर्कल 17 के डिप्टी कमिश्नर से फौरी तवज्जो देने और इलाके के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। जलपल्ली GHMC सर्कल 17 डिवीज़न 64 से मैं माइनॉरिटी BRS पार्टी वाइस प्रेसिडेंट सैयद हुसैन। आज मेरा मीडिया में आने का मकसद जो है वादी मुस्तफ़ा में
गवर्नमेंट जो अब कांग्रेस गवर्नमेंट जो चल रही है, तो ये गवर्नमेंट में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को जो है एकदम इंसान का भी जो है एक तरीका रहता जीने का, हर चीज का। तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए कुछ फैसिलिटी देती, तो हमारे पास में यहाँ इंसान जी रहे मगर जानवरों से बुरा हाल है हमारे पास में। अभी आप जो है हमारे IS न्यूज के आप जो है इसमें एक विजुअल में देख सकते हैं। एक विजुअल में ये है कि रोड पे पानी, ड्रेनेज का पानी, एक तो पानी जा रहा, फिर ऊपर से मैनुअल का ढकना नहीं है ऊपर के पूरा, और वो रोड जो है हमेशा उसमें जो है डेली के 2000 से 2500 बच्चे सुबह के टाइम जाना और फिर उसके बाद 3:30 को स्कूलों से वापस आना। वही रोड पे 3 स्कूल है, MS ग्रामर स्कूल है, स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, और वहां पे 2 मस्जिदें हैं। जुम्मा के दिन जो है बाहर निकलते मुसल्लियां, पानी जो है गंदगी, पूरी गंदगी रोड के ऊपर से जा रही। क्यों भाई, क्यों इतना बुरा हाल कर रहे हैं जलपल्ली म्युनिसिपल वाले, वादिया मुस्तफा का? क्या आपके म्युनिसिपल में जो है स्टाफ नहीं है, या फिर आपका ने कोई चीज नहीं है? तो गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही? कांग्रेस गवर्नमेंट आके जो है अपने आप को बताते हम रहनुमा है, हम मुसलमान है, वो हम जो मुसलमानों के रहनुमा है। क्या कर रहे हैं? मुसलमान मर जा रहा है यहाँ पे, मच्छरों से मर जा रहा, कचरे से मर जा रहा, मोरी के पानी से मर जा रहा। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बताओ, इख्तिदार पे बैठ के क्या कर रहे हैं? तुम्हारे जोरू बच्चों को लेके जाके तनख्वाह खिलाएंगे, तुम क्या खिलाते? यहाँ पे इंसाना मर जा रहे हैं, यहाँ पे गरीबा मर रहे हैं, तुम जो है वही तनख्वाह महीने को इनकी ये गरीबों की नौकरी तुम्हारे करो बोल के सीटा दे के तुम्हारे तनख्वाह दे रहे हैं, वो तनख्वाह लेके जाके तुम्हारी औलाद को खिलाए तो आंख को लगता है, तुम्हारी औलाद को मर रहे हैं इंसान यहाँ पे, कोई तरीके की फैसिलिटी नहीं है। और ऊपर से जो है कल एक महाशय कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने आके जो है कल KLR साहब फला, KLR साहब ऐसा, गवर्नमेंट हुकूमत, कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसा। अरे क्या बैगन करी आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट, ये बताओ। आके 3 साल हो गए, जलपल्ली म्युनिसिपल में क्या फंड लाके दिए, क्या काम करे, मुसलमानों से क्या दुश्मनी है? और आपके CM रेवंत रेड्डी, जो आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट के जो CM अब जो बैठे हुए हैं, मुसलमानों के दुश्मन कहूंगा मैं तो, क्योंकि मुसलमान 3 साल से तड़प रहे, मर रहे हैं, तो आप नहीं देखे। इसलिए मैं आपको जो है मुसलमानों से तासुस रखने वाला कहता हूं, क्योंकि अगर आपको मुसलमान से मोहब्बत होती तो आप यहाँ पर आके या आपके लीडर को भेज के कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो है मसले का हल निकालते थे। आपके लीडर भी आ रहे हैं, आए तो क्या काम हुआ बताइए मेरे को? साफ सफाई हुई, मोरी का साफ सफाई हुई, नहीं मोरी के ढकने डाले, मिनलों के नहीं लाइटों के काम हुए, क्या तो भी आखिर क्या चाह रही गवर्नमेंट? ये आपको वोट देके, आपको इख्तिदार देके, आपको कुर्सी पे बिठा के गलती करे, ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी। हाँ, मैं जो है आप लोगों को सख्त मजम्मत करता हूं ये चीज की, और मैं आप लोगों से तलब करता हूं कि आप लोग आइए, आप लोग जो सीटों पे बैठे, जो अवाम की जो तनख्वाह आप लोग जो खा रहे हैं, वो चीज का आपका हक अदा करिए, काम करिए आके। जो आप महीने को तनख्वाह खा रहे हैं, इनकी गरीबों की मदद कर, मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे बस्ती में, बल्कि अवाम का आप जो तनख्वाह खा रहे हैं वो तुम्हारे आंख को लगना है, तो यहाँ आके तुम काम करना, देखना इंसाना जी रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या हाल से जी रहे हैं। अरे बच्चे गिर जा रहे हैं मोरी के उसमें, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पैदल पैदल जो जाते हैं स्कूल को, थोड़े बच्चे हैं जिसको अपने माँ बाप गाड़ी पे बिठा के छोड़ देते लेके जाके गंदगी से हटा के, मगर जो छोटे बच्चे किसी के जो है गरीब लोग हैं, स्लम एरिया है, उनके माँ बाप तो उनको तो घर से जाओ बोल के ऐसे ही भेजेंगे, वो लोग गंदे पानियों में से जा रहे आ रहे हैं। तो मेरा बोलना ये है, ये मसले का हल जल्द से जल्द निकालिए, और कोई लीडर आके जो है यहाँ पे जिसको दुम नहीं मालूम, उन्होंने आके जो है यहाँ पे कोई ऐसा आके ये खाली अपना नाम कर लेके मीडिया में डाल लेके जाने की जरूरत नहीं है। काम हमारा, काम हमारी पहचान है, हमारी BRS पार्टी जब तक थी हम कितना काम करे यहाँ की अवाम जानती, पब्लिक जानती। इसलिए आज KCR राव वाले का सिर्फ एक तराना, और जहां पे हमारा CM, हम तो अभी भी CM ही मानते, हाँ, हमारे CM को KCR साहब जहां जाते सिर्फ पब्लिक के नारे CM के रहते। ये मोहब्बत है पब्लिक की। इंशाल्लाह आने वाला इख्तिदार फिर से जो है BRS पार्टी का होगा, हमारे सबिता मैडम की ही जीत होंगी, और इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट किस चीज को कहते हैं हमारे KTR साहब से पूछिए, KTR साहब ने क्या क्या किया है तेलंगाना के लिए, हमारे KTR साहब बताएंगे तेलंगाना में क्या क्या काम होते हैं, कैसा काम किया जाता है। हाँ, IT मिनिस्टर, उनसे पूछिए। हमारा काम, हमारे BRS पार्टी की पहचान है। मैं कोई अपना बैठ के कोई यहाँ पे हमारी पार्टी जो है ऐसा हम बोल के हम तारीफ नहीं कर ले रहे, मगर जो काम किए वो बताना जरूरी है। इसलिए हम बोल रहे हैं, आपको भी यही बोल रहे हैं कि आप सीट लिए तो आप काम करिए, आप आइए देखिए यहाँ पे, हमारा बोलना जायज है नहीं, हम आपको यहाँ पे खाली एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने के लिए बोल रहे हैं। आप आओ आके देखो इंसाना क्या हालत में जी रहे।
आप जो विजुअल देख रहे हो न्यूज के भी है, इसमें कितना कचरा है, कितने मोरी के पानियां जा रहे हैं, कितना जो है तुम्हारे को जो है ढकने खुले हैं मोरी के, लाइटां देखो, खंबे देखो। अरे इतनी बड़ी उसमें बस्ती में 15-20 हजार आदमी जीने को, उसमें तुम 2 साल 2.5 साल में 10 लाइटां देते, 10-12 लाइटां लाके लगा रहे। हाँ, तो मेरा गुजारिश ये है कि कांग्रेस हुकूमत अपना काम करे बस। अस्सलाम वालेकुम। मुधोल सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रविंदर नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बासर का 19 साल उर्सा लक्ष्मण ने 18 अगस्त की रात मुधोल न्यू बस स्टैंड के करीब वाक़े न्यू राजा राजेश्वर मोबाइल पॉइंट से 2 मोबाइल फ़ोन्स, 2 ब्लूटूथ डिवाइस और 1 पावर बैंक चोरी किया। दुकान की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने निर्मल रूरल के चुटियाल में भी 3 दुकानों में सरका किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन्स, 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस, पावर बैंक और 2000 रुपये नकद रकम बरामद की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के ख़िलाफ़ पहले भी 2024 और 25 में मुधोल, बोधन टाउन, बोधन रूरल और निर्मल रूरल पुलिस स्टेशनों में मुकदमात दर्ज हैं। నమస్కారం. ఈరోజు ముదూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక ప్రాపర్టీ అఫెండర్ను పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని పేరు ఉర్సు లక్ష్మణ్. ఇతను బాసర్ నివాసి. ఇతను ప్రీవియస్ అఫెండర్. గతంలో చాలా టెంపుల్ అఫెన్స్లలో చేశాడు. లాస్ట్ టైము బోధన్ రూరల్ పరిధిలోంచి టెంపుల్ అఫెన్స్లో చేసి అక్కడ జైలు పోయి ఒక వారం క్రితం బయటకు వచ్చాడు. అయితే తేదీ 8వ తారీఖు రోజు మధ్యాహ్నం పూట నిర్మల్ వెళ్తాడు. అక్కడ ఒక నైట్ నిర్మల్ రూరల్లో లిమిట్స్లోని ఒక 3 టెంపుల్ అఫెన్స్లలో అఫెన్స్ చేస్తాడు. అక్కడ నుండి ముదోలు వచ్చేసి ఒక షట్టర్ లిఫ్టింగ్ చేసి ఒక రాజరాజేశ్వర అనే మొబైల్ షాప్లో లోపల ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ మనకు ఒక 2 మొబైల్స్, అలాగే ఒక పవర్ బ్యాంకు, అలాగే ఇయర్ ఫోన్స్ని దొంగతనం చేస్తాడు. ఇతని యొక్క సీసీ ఫుటేజ్ను వెరిఫై చేసేసి ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను ముదోల్ ప్రజలకు అందరికీ కోరుకునేది ఒకటి ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా మీ యొక్క షాప్స్లలో సీసీటీవీస్ పెట్టుకోండి. అదేవిధంగా ప్రతి షాప్ ఓనర్ కూడా వాళ్ళ షాప్స్ కవర్ చేస్తూ, అలాగే ఆ సీసీ కెమెరాలు ఒకటి రోడ్ సైడ్ విజిబిలిటీ అయ్యేటట్టుగా కవర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. खाजीपेट दरगाह हज़रत सैयद अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ का शानदार आगाज़ हुआ। उर्स की तकरीबात में रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अक़लियती बहबूद के वज़ीर अज़हरुद्दीन, वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा, रुकन असम्बली नैनी राजेंद्र रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की और दरगाह में खुसूसी हाज़िरी देकर दुआएँ की। इस मौके पर मजहबी हम आहंगी, दरगाह की तरक्की और ज़ायरीन के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि खाजीपेट दरगाह मजहबी हम आहंगी और गंगा जमनी तहज़ीब की बेहतरीन मिसाल है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोग अक़ीदत के साथ शिरकत करते हैं। दरगाह की तरक्की के लिए ज़रूरी फ़ंड्स फराहम करने और आइंदा उर्स तक बुनियादी सहूलतों व तरक्याती कामों की तकमील का यकीन दिलाया। रुकन असम्बली नैनी राजेंद्र रेड्डी ने बताया कि ज़ायरीन के लिए पानी, बिजली, सफाई, ट्रैफिक और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं, जबकि तकरीबन 40 लाख रुपये की लागत से पीने के पानी की सहूलत फराहम की गई है। టీం చెప్పడం జరిగింది. గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, అదే రకంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి, పాషాబాయ వారి టీంతో ఈ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో మీరు ఎమ్మెల్యే గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకునే డీటెయిల్స్ ఇస్తే తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో చెప్పి 100% మీ రిక్వైర్మెంట్, ఇది సర్వమతాలకు సంబంధించిన దర్గా కాబట్టి రేర్ ప్లేసెస్ లో ఇటువంటి దర్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎంత ఖర్చు అయినా కూడా నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ ఈ ఉత్సవాల నాటికి వీటన్నిటినీ పూర్తి చేసే బాధ్యత ఈ ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా నేను తీసుకుంటాను. అది ఎంతైనా పర్వాలేదు, తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి శాంక్షన్ చేపిస్తానని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నా సోదరులు, ముస్లిం సోదరులు, సర్వ మతాలకు సంబంధించిన సోదరులందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన పాషాబాయికి, వారి టీం అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు చెప్తూ
हैदराबाद कलेक्टर मोहतरमा प्रियंका आला ने जेड न्यूज़ टीवी चैनल के रिपोर्टर शेख मोहम्मद को मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड हवाले करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड हासिल होने के बाद शेख मोहम्मद ने जेड न्यूज़ टीवी चैनल और पैट्रियोटिक व्यूज़ के दफ्तर पहुंचकर डायरेक्टर जेड न्यूज़ टीवी चैनल मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी साहब से मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी साहब ने शेख मोहम्मद को मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड हासिल होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्हें उम्मीद ज़ाहिर की है कि शेख मोहम्मद अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देते हुए अवामी मसाइल को उजागर करने और अवाम की आवाज़ को मौसर अंदाज में पेश करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर जेड न्यूज़ टीवी चैनल और पैट्रियोटिक व्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ियों और स्टाफ ने भी शेख मोहम्मद को मुबारकबाद पेश की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने सरदार सरवाई बापन्ना गौड की 376वीं यौम पैदाइश के मौके पर सरदार सरवाई बापन्ना फिल्म के ट्रेलर की नकाब कुशाई। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई से मुताल्लिक़ टेसरा एक्ट ज़मीन के मामले को बड़ा स्कैम करार देते हुए तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग की चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू से मुलाकात। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादुल ख्याल। KBR पार्क के अतराफ फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर के पेश नज़र 18 अगस्त 2026 से वन वे ट्रैफिक निज़ाम नाफिज करने का किया गया फैसला। वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने CCI के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कपास की MSP पर ख़रीदारी के सिलसिले में रियासत में जारी तैयारियों का लिया जायज़ा। बालापुर दरगाह हज़रत सैयद इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद अकबर मोहिउद्दीन क़ादरी ने चादर गुल की पेश। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।